Hello dear students and dear friends, welcome to Concrete Civil Concepts, and this is our interview session 18th for BPSC and UPPSC AE both. Okay, and we have covered our Geotechnical Engineering in our interview session 16th and 17th as part A and part B, and this is our interview session 18th. Okay, and in this interview session 18 we will be discussing some important questions on geotechnical engineering. Okay, and these questions are important as per your theoretical background or as per your field knowledge or your practical knowledge. Okay, practical aspects questions we'll be discussing in this video. Okay, so this video is very important for you guys. Okay, and do subscribe this Concrete Civil Concepts. Okay, and there is a one Telegram channel link given in the description box. You can join that channel for more updates and for more videos on interviews. Okay, and this is Concrete Civil Concepts, and I welcome you all once again, and we will be starting our lecture shortly. Okay, so we have covered our structure analysis, we have covered our RCC, environmental engineering, strength of material and your building materials. Okay, and we have covered all these 6 subjects in a deep manner, and the links of all these subjects are given in the description box. You may watch that videos and gain your potential. Okay, and today in this video we will be discussing our important 25 questions on geotechnical engineering, which is important for theoretical background as well as for practical practical point of view. Okay, so what are these questions? The number 1 questions is the panel asked your some definition parts related to your geology. Okay, so geology is also covered in the geotechnical engineering or foundation engineering. So you must understand what is dip, what is strike. Okay, so these definition of these terms are important as well for your interview point of view. Okay, so let me tell you what are the terms that will ask is your dip. So dip, you know, it is the downward separation of a bedding plane. Okay, so it is defined as a downward separation of a bedding plane. Then your faults. So faults are the ground fractures. Okay, so faults are defined as the ground fractures is known as faults. Then we have minerals. So minerals are the chemical elements that constitutes our rock. Okay, so you can define your mineral is a chemical element that constitute your rocks. Okay, so mineral definition you have to keep in mind. Then is definition is soil. So soils are the minerals that are derived from the weathering of rocks. Okay, so soils are the minerals that are derived from the weathering of rocks, or weathering of rocks. We know weathering of rocks either due to physical weathering or your chemical weathering. Physical weathering means your exfoliation, your unloading and your freezing and thawing. Okay, and in your chemical weathering it is includes your oxidation, reduction. Okay, all your chemical process parameters. So weathering of rocks is important to, as your soil is formed due to weathering of rocks also. Okay, so soil किस तरह बनती है आपकी? वेदरिंग ऑफ रॉक से ही बनती है. फिजिकल वेदरिंग हो सकती है, केमिकल वेदरिंग हो सकती है. इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जियोलॉजी वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस में. ठीक है, तो आपके कुछ डेफिनेशन पार्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. ओके, सो दीज आर इम्पोर्टेंट एज वेल. एंड इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट इज योर what is igneous rocks, what is sedimentary rocks and what are metamorphic rocks. Okay, तो igneous rocks वो rocks होते हैं जो कि आपके मोल्डन लावा से बनते हैं. ओके, सॉलिडिफाई हो जाते हैं जब आपके, ठीक है, जब आपका वॉल्केनो इरप्शन होता है वहां से आपके जो मोल्टन लावा से जो आपके रॉक्स फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. ओके, एंड योर सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स, एंड एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल से भी बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द वाटर और योर लैंड ऑन द अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ सरफेस पे सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से, प्लांट्स के डिपोजिशन से, एनिमल्स के डिपोजिशन से जो मटेरियल्स के डिपोजिशन से बनते हैं वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं. एंड सब्जेक्टेड टू योर हाई प्रेशर एंड हीट और प्रेशर के इफेक्ट में आपका सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है. ठीक है ना, सेडिमेंट से, प्लांट से, एनिमल मटेरियल से अर्थ सरफेस के ऊपर. तो आपके इग्नियस रॉक्स आपके फॉर्म होते हैं मोल्टेन लावा के द्वारा. ठीक है, अर्थ का जो आपका वॉल्केनोस होता है वॉल्केनिक इरप्शन में, तो वहाँ से आपके
इग्नियस रॉक्स कह सकते हो, सेडिमेंट्री रॉक्स देख लिया हमने। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके अंडर और आपका सेडिमेंट्री रॉक और जो आपका इग्नियस रॉक होता है उनके अंडर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपके बनते हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सो मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के बहुत ही अंदर डीप एरिया में आपके बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर igneous rock and your your sedimentary rock। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ igneous rock और sedimentary rock के ट्रांसफॉर्मेशन से आपके मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो ये तीन टाइप के जो रॉक्स हैं, igneous rock, sedimentary rocks और मेटामॉर्फिक रॉक, ये बच्चा स्किप कर देता है इंटरव्यू में जाने से पहले, और ये क्वेश्चंस आपके जनरली पूछते हैं। वो आपका पार्ट जानना चाहते हैं कि बच्चे को बेसिक रॉक की नॉलेज है नहीं है, ठीक है। और आपका जो सॉइल फॉर्म किस तरह होता है, सॉइल फॉर्म होता है आपका वेदरिंग ऑफ रॉक से। ओके, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हमने देखा, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू जियोटेक्निकल इंजीनियर्स। भाई आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियर्स के लिए? क्योंकि आप बोल सकते हो कि 75% आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो अर्थ सरफेस पे अवेलेबल होते हैं। इस वजह से आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो जियोटेक्निकल इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डज सॉइल फॉर्म, सॉइल किस तरह आपकी फॉर्म होती है? हमने देखा कि सॉइल फॉर्म होती है हमारी वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग और रॉक से फिजिकल वेदरिंग हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है आपका कि जो पार्टिकल साइज होता है वो रिड्यूस होता है, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज विदाउट लूजिंग इट्स पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंट रॉक की कैरेक्टरिस्टिक लूज नहीं होती है, बस आपका जो रिडक्शन इन साइज होता है, ठीक है ना। अब केमिकल वेदरिंग, अब फिजिकल वेदरिंग में आपका किस किस तरह हो सकती है? एक्सफोलिएशन हो सकता है आपका, ठीक है, अनलोडिंग की वजह से होती है, आपका फ्रीजिंग की वजह से, थॉइंग की वजह से, ये सारे फैक्टर्स होते हैं आपके फिजिकल वेदरिंग के, ठीक है, रॉक्स के फॉर्म होने के। सिमिलरली केमिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो आपका कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है केमिकल वेदरिंग की वजह से, ठीक है। इसमें भी आपका साइज रिड्यूस होता है और इसमें आपका केमिकल नेचर भी आपका चेंज हो जाता है पेरेंट रॉक का। ओके, केमिकल वेदरिंग की वजह से भी आपके रॉक्स, सॉइल्स फॉर्म होती हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। मैंने पूछा कि क्यों जियोटेक्निकल इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 75% आपका अवेलेबल होते हैं अर्थ सरफेस में, इस वजह से हम जियोटेक्निकल इंजीनियर्स के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सॉइल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि सॉइल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? आपको पता है ग्रेन साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड योर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली क्ले सॉइल के लिए टाइप ऑफ क्ले मिनरल और सरफेस फोर्स। ओके, तो सरफेस फोर्स हो गया और क्ले मिनरल हो गया और स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया और आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर को। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या प्रॉपर्टी होती है? आपके जो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी काफ़ी लो होती है, ठीक है ना। लो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है और हाई आपका शेयर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है आपका फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में, ठीक है। और आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर में शेयर स्ट्रेंथ कम होती है उसकी, ठीक है, और लो शेयर स्ट्रेंथ होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है उस केस में। तो फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर का भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या होती है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपको पता है कि आपको क्या सॉइल की क्लासिफिकेशन जानने के लिए, सॉइल का इंजीनियरिंग बिहेवियर जानने के लिए इंडेक्स प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो दीज आर हेल्प्स इन असर्टिंग योर क्लासिफिकेशन ऑफ एंड इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ द सॉइल, दीज आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हम देख चुके थे, एटाबर्ग्स लिमिट जो आपकी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। या आपकी स्टेज जो होती है प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है। एटरबर्ग ने क्लासीफाई करा था 4 स्टेजेस में कंसिस्टेंसी में। तो कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव ईज विथ विच अ सॉइल कैन बी डिफॉर्म। ओके, कंसिस्टेंसी आपने कंक्रीट में भी पढ़ा था, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, कि आपका जो कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट आपने देखा था, जिसमें आप विकेट प्लंजर आप अप टू 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड आप उसमें पेनिट्रेट कराते हो, तो वहाँ से आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकलता है, ठीक है ना। सिमिलरली कंसिस्टेंसी ऑफ
सॉइल क्या हो सकती है आपकी, जो भी डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट द ईज विद विच द सॉइल डिफॉर्म्स, ओके, सॉइल कैन बी डिफॉर्म। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। इंपॉर्टेंट इज व्हाट डू यू मीन बाय श्रिंकेज लिमिट। So shrinkage limit is, you know, it is the maximum water content at which the further reduction in water content does not cause any volume change. Okay, reduction in the volume, okay, is known as shrinkage limit. So shrinkage limit की definition आप पढ़ सकते हो, बहुत important है shrinkage limit. Then इसके बाद shrinkage ratio भी पूछता है। shrinkage ratio is the ratio of dry density upon density of water. So shrinkage ratio बच्चों को पता नहीं होता, तो shrinkage ratio आप पढ़ सकते हो, is the ratio of a dry density upon density of water. Okay, so this is important also. Then उसके बाद और आपका soil में important questions आते हैं, तो वो आता है आपका what are the factors that affecting the permeability. So permeability को affect करने के कौन कौन से factor होते हैं आपको पता है। void ratio होता है, ठीक है, आपका pore size होता है, interconnected pore space होते हैं, particle size distribution हो सकता है, homogeneity of the soil mass हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए factors, वाइड रेशियो, इंटरकनेक्टेड सॉइल स्पेस, वाइड स्पेस, और आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। देन योर प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, आपने देखा जो कॉजिनी कार्बन इक्वेशन होती है, K इज इक्वल टू 1/C इंटू 1/S², EQ अपॉन 1+E। E क्या होता है, वाइड रेशियो होता है, ठीक है। तो गामा W अपॉन म्यू, ओके, तो यहाँ से आपका गामा W इज यूनिट वेट ऑफ वाटर और म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये फैक्टर्स आपके परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। कॉम्पैक्शन आपका क्या होता है, एक आपका कॉम्पैक्शन एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होता है और कंसोलिडेशन आपका एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है, ठीक है। तो आपका जो आपका कॉम्पैक्शन होता है इसमें आपका डेंसिफिकेशन होता है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ और एयर, आपका जो एयर रिलीज होती है उसकी वजह से डेंसिफिकेशन होता है सॉइल मास में। सिमिलरली कंसोलिडेशन में आपका जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है वो आपका होता है एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वाइड स्पेस, ठीक है। वाइड स्पेस में से आपके जो पोर वाटर एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन इंपॉर्टेंट है। और एक दो पॉइंट और बता सकते हो, कॉम्पैक्शन में सॉइल जो आपकी हमेशा पार्शियली सैचुरेटेड रहती है बट आपकी कंपैक्शन में और कंसोलिडेशन में आपकी सॉइल हमेशा कंप्लीटली सैचुरेटेड रहती है। कंसोलिडेशन आपका टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है तो आपका हमेशा सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड रहती है। और आपके जो कॉम्पैक्शन को कॉम्पैक्ट करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स भी होती हैं और सम स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। और आपका जो कंसोलिडेशन होता है वो स्टैटिक लोड प्लेस होता है सॉइल मास पे, उसकी वजह से आपका कंसोलिडेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर योर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करते हो तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं आपको पता है। सेटलमेंट कम होता है, सेटलमेंट रिड्यूस होता है, रिड्यूस सेटलमेंट आपको मिलता है। और आपका स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल मास इंक्रीज करती है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और आप लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सबग्रेड का आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, इनहांस होती है, ठीक है ना। और वॉल्यूम चेंजेस, अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंजेस भी नहीं होते हैं अगर आप कॉम्पैक्शन कर देते हो ड्यू टू आपका फ्रोस्ट एक्शन वगैरह की वजह से जो वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दैन इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आता है प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है। प्रॉक्टर टेस्ट आपको पता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एफर्ट, आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाते हो और आपका एक पर्टिकुलर ड्राई डेंसिटी पे जो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है उस पर एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, उसको आप बोलते हो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC। तो वहाँ से आप जैसे ही आपका कॉम्पैक्टिव एफर्ट लगाते हो सॉइल मास पे, कॉम्पैक्शन एनर्जी जितना आप लगाते हो सॉइल मास पे, तो देयर इज वन मॉइस्चर कंटेंट नोन एज योर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और उस पर्टिकुलर सॉइल पे अटेन आपको ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो कर्व जो प्लॉट होता है वो आपका इन्वर्टेड कर्व जैसा रहता है, आपने देखा होगा। और आपका वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे आपका ड्राई डेंसिटी होती है गामा डी और आपका एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। तो प्लॉट पूछ सकते हैं, जो आपका प्रॉक्टर टेस्ट होता है इसमें आपका एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट होता है और वाई एक्सिस पे आपका होता है ड्राई डेंसिटी, ठीक है ना। और आपका लाइन ऑफ ऑप्टिमस मिलता है 100% ऑप्टिमस, 100% सैचुरेशन लाइन और 0 एयर वॉइड लाइन भी बोलते हैं उसको, साइड में आपको राइट साइड में। जैसे आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट और कॉम्पैक्शन बढ़ाओगे, आप कॉम्पैक्टिव एनर्जी इंक्रीज करोगे तो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा और ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको कर्व पता होना चाहिए, लाइन ऑफ ऑप्टिमस और 100% सैचुरेशन लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं।
वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉक्टर टेस्ट का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रॉक्टर टेस्ट। तो प्रॉक्टर आइडिया देता है अबाउट योर कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, कि कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल के बारे में एक आइडिया देता है, रफ आइडिया देता है प्रॉक्टर टेस्ट। और इट गिव्स द डेंसिटी दैट मस्ट बी अचीव्ड इन द फील्ड, और ये जो आपके ड्राई डेंसिटी मिलती है जो कि फील्ड में अचीव होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग योर कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आपको पता है मॉइस्चर कंटेंट हो गया, सॉइल टाइप हो गया, और कॉम्पैक्टिव एफर्ट हो गया। कॉम्पैक्टिव एफर्ट मतलब नेचर ऑफ एफर्ट किस तरह है और आपका अमाउंट ऑफ एफर्ट कितना दे रहे हो। तो आपका सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स कॉम्पैक्शन के मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है, और आपका कॉम्पैक्टिव एफर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको रेफर किए हैं टेक्स्ट बुक से, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे वो क्वेश्चंस जो आपके पैनल पूछते हैं वही क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फैक्टर्स जनरली आपके दिमाग में नहीं आते, आप इसको कॉपी पे पेन से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, व्हाट इज द एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल स्ट्रक्चर पे बता सकते हो, परमेबिलिटी पे बता सकते हो क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्वेलिंग पे, पोर वाटर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह आप बता सकते हो इसको। देन उसके बाद आपका जो आपके कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, आपको पता है रैमर्स होते हैं आपके पास, और आपका वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं, न्यूमेटिक टायर रोलर्स होते हैं, व्हील्ड रोलर्स होते हैं, ठीक है, और आपका स्मूथ व्हील्ड रोलर्स होते हैं। तो उनका सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल पता होना चाहिए कि आपका जो रैमर्स होते हैं और टेम्पर्स होते हैं वो ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए सूटेबल होते हैं। देन उसके बाद आपका जो वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं वो कोहेशन लेस सॉइल्स के लिए प्रेफर करते हैं। कोहेशन लेस सॉइल्स मतलब आपका जो सैंड्स होते हैं, सैंड इज अ कोहेशन लेस, तो आपका सैंड के लिए हम आपका वाइब्रेटरी रोलर्स प्रेफर करते हैं। देन शीप फुट रोलर्स हमारे हमेशा क्लेली सॉइल के लिए यूज करते हैं, जिसमें कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती है, सी वैल्यू जिसमें एग्जिस्ट करती है, 50 होता है जिसमें, ओके। तो और आपका न्यूमेटिक टायर रोलर्स आपका सैंड के लिए, ग्रेवल्स के लिए, सिल्ट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ग्रेवल सिल्ट्स के लिए। स्मूथ व्हील रोलर्स भी आप क्रस्ट रॉक्स, ग्रेवल्स और सैंड्स के लिए यूज करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, आपके वाइब्रेटरी रोलर्स और आपका शीप फुट रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर और आपका रेमर्स और टेम्पर्स, ओके, ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए यूज करते हैं। तो कुछ कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट के नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोर वाटर प्रेशर। वो पोर वाटर प्रेशर जो कि आपका एग्जिस्ट होता है, जो कि अकर होता है, उससे क्या समझते हो। सो इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर फिलिंग द वाइड स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, ओके। जो भी आपका वाटर फिल होता है वाइड स्पेस में सॉलिड पार्टिकल्स के अराउंड, उसको आप बोलते हो पोर वाटर प्रेशर, ओके। और इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज योर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। और क्विक सेंड कंडीशन हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था। क्विक सेंड कंडीशन क्या होती है, जब आपका अगर कोई केस है अपवर्ड सीपेज फ्लो के केस में आपका जो अपवर्ड सीपेज फोर्स इक्वल हो जाता है बॉयंट वेट ऑफ द सॉइल के, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल बिकम जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल जीरो हो जाता है अपवर्ड सीपेज फ्लो के केस में। अपवर्ड सीपेज फ्लो में आपका जो आपका बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाता है आपका सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स इक्वल्स टू बॉयंट फोर्स, और उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो के बराबर हो जाता है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ICR इज इक्वल टू G-1/1 G होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके ये क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे बात करता हूँ परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी इज द ईज विद विच द वाटर फ्लोज थ्रू द any medium, okay. So permeability is a ease with which water flow with any medium, okay. So this is important as well. And you know flow net क्या होता है। flow net हमने देख लिया था। flow net आपका जो टू सेट ऑफ कर्व से बनता है, आपका एक तो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है और आपका फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन से बनते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, फ्लो नेट तैयार होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट भी पूछ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट क्या क्या हो सकती हैं। जो फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हमारे को पता है, और इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक सॉइल के केस में, ठीक है। और जो आपका स्पेस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस इज कॉल्ड फ्लो चैनल और फ्लो पाथ बोलते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है ऑल फ्लो फील्ड्स आर एलिमेंट्री स्क्वायर्स, लीनियर और कर्वीलीनियर होते हैं। एलिमेंट्री स्क्वायर्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस होते हैं जो इसके बीच में एलिमेंट्री स्क्वायर्स के रूप में बनते हैं।
और जो आपका एक और इम्पोर्टेंट है आपका प्रॉपर्टी, हेड लॉस थ्रू ईच सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइन इज इक्वल। ओके, तो आपका जो हेड लॉस होगा ईच सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइंस में इक्वल होगा, और डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज कांस्टेंट। जो आपका डिस्चार्ज होगा वो हमेशा फ्लो चैनल में हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। सैलिएंट पॉइंट्स अबाउट फ्लो नेट आपसे पूछ सकते हैं, तो फ्लो नेट का आप बता सकते हो, और आपका कि जो डिस्चार्ज किस तरह कैलकुलेट करते हैं, Q इज इक्वल टू KH NF अपॉन ND से कैलकुलेट करते हो। फ्लो नेट का यूज आपको पता ही है भाई, सीपेज कैलकुलेशन में यूज करते हो आप फ्लो नेट का। सीपेज कैलकुलेशन में अपलिफ्ट प्रेशर में कैलकुलेशन के काम आता है आपका, कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर में। ठीक है, सीपेज कैलकुलेशन अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेशन में अपलिफ्ट प्रेशर किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए काम आता है। एग्जिट ग्रेडियंट भी आप इससे निकालते हो फॉर टू डिटरमाइनिंग द पाइपिंग के केस में एग्जिट ग्रेडियंट। ओके, तो एग्जिट ग्रेडियंट सीपेज कैलकुलेशन और अपलिफ्ट प्रेशर निकालने के काम आता है। पाइपिंग क्या होता है, व्हेन अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप्रोचेज यूनिटी। तो आपका अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप्रोच यूनिटी की तरफ पहुंच जाता है तो बॉइलिंग कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, तो लीडिंग टू एरोजन ऑफ सॉइल एंड पाइपिंग, उसको आप बोलते हो पाइपिंग और एरोजन ऑफ सॉइल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट। आपको पता है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब आपकी किसी भी इरेगुलर शेप का होता है, उस केस में आपका जो इंटेंसिटी ऑफ सॉइल के जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हो, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां से आपका जो न्यूमार्क्स चार्ट होता है वो कॉन्सेंट्रिक लाइंस और रेडियल लाइन से बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो 10 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, 20 रेडियल लाइंस होती है, तो वहां से आपका इन्फ्लुएंस एरिया निकल जाता है, वहां से आपका न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी शेप के लिए होता है, इरेगुलर शेप के लिए। देन कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको पता ही है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच डिक्रीज इन द वॉल्यूम अकर्स अंडर कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, ओके, इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये 25-30 क्वेश्चन हमने देखे हैं इसमें। देन हाउ टोटल सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज एक्सप्रेस्ड। तो टोटल सेटलमेंट सॉइल का किस तरह एक्सप्रेस करते हो, आपको पता है इमीडिएट सेटलमेंट होता है, प्लस 1 डिग्री सेटलमेंट होता है, प्लस 2 डिग्री सेटलमेंट होता है। तो टोटल सेटलमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज 3 कॉम्पोनेंट्स, इमीडिएट सेटलमेंट प्लस 1 डिग्री सेटलमेंट प्लस 2 डिग्री सेटलमेंट। इमीडिएट सेटलमेंट और प्राइमरी कंसोलिडेशन भी बोलते हैं 1 डिग्री कंसोलिडेशन को, और 2 डिग्री कंसोलिडेशन आपका होता है। ठीक है, प्री कंसोलिडेशन और ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होते हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो हम देख चुके थे, और प्री कंसोलिडेशन और कॉम्प्रेशन इंडेक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन हम देख चुके थे पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, और आपका इमीडिएट सेटलमेंट अगर आपसे पूछता है तो इमीडिएट सेटलमेंट आपको पता होना चाहिए कि इफ सॉइल इज इनिशियली पार्शियली सैचुरेटेड, तो एक्सपेल्शन ऑफ एयर एज वेल एज कॉम्प्रेशन ऑफ पोर एयर में टेक्स प्लेस विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स, सो इट इज नोन एज इनिशियल कॉम्प्रेशन। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट 25 to 30 क्वेश्चन जियोटेक्निकल के कवर करते हैं और फिर देखते हैं। सो थैंक यू सो मच।